Hare Krishna, good morning and welcome all of you all for our Sunday morning Bhagavad Gita class. So we are on just started the 4th chapter, we have completed 4.2. So the recap is, Lord is going to speak to Arjuna and he is saying how this knowledge of Bhagavad Gita or the science of connection with God has been lost in due course of time. And now from verse number 3 is going to be very interesting. And he says, Lord says in verse number 3, 4.3, this very ancient science of the relation with the Supreme. What is the science of relation with the Supreme? Simple word, Bhakti Yoga. Yoga means connection. योगा का मतलब, योग का मतलब कनेक्शन है. इसके लिए योग और योगा अलग है. योगा मीन्स एक्सरसाइज, whereas योग मीन्स कनेक्टिंग विद गॉड. तो what is Lord saying? This science of connecting you with God. So this very ancient science of the relationship with the Supreme God told by me to you because you are my devotee. तो पहला, what is the qualification for one to learn Bhagavad Gita? He has to be a devotee. Having material qualifications, PhD degrees is not enough. This Lord is saying, I am not saying this, mind you. First thing Lord is saying is, भाई कि आपको पहले, the shloka he says very nicely, स एवं मया ते आद्य योग प्रोक्तः. What is the meaning of yoga प्रोक्तः? प्रोक्तः means I speak, I say. योग, योग मतलब यूनियन. क्यों? पुरातनः, he saying ये बहुत पुराना साइंस है. दिस नॉट नया. भगवद गीता कुछ नया नहीं है. मगर आप बोलेंगे वी आर स्टेइंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड, वी आर स्टेइंग इन द मॉडर्न लाइफ स्टाइल, सो पुराना, आउटडेटेड क्यों पढ़े? व्हाई शुड वी रीड समथिंग आउटडेटेड? राइट ना? अब तो हम लोग जेट एज में हैं, मोबाइल के युग में हैं, एंड देन व्हाट ऑल 5G 6G क्या क्या आने वाला है. बिस्किट से चीज़ स्टार्ट हुआ, अब कहाँ तक जी पहुँच गया? पार्ले जी से स्टार्ट हुआ, 5G तक पहुँच गए, मगर प्रभु जी कहीं नहीं रहे. तो प्लीज टेल मी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद दिस? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद दिस? Puratana means what? Everything in this material world is old. Nothing is new. What is new? It's changing its shape. 100 साल पहले जिस जमीन पे एक झोपड़ा था, वहां टूट के एक नया बिल्डिंग आ गया. जमीन तो वही है, मट्टी तो वही है, और वही बिल्डिंग 100 साल बाद जब खंडर हो जाएगा, किससे मिलेगा? मट्टी में जाके मिलेगा. तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस इज एन ओल्ड साइंस, एंड दिस साइंस कैन नेवर गो ओल्ड. व्हाई? दिस सोल इज ओल्ड, गॉड इज ओल्ड. हम तो वही है ना. व्हाट इज लॉर्ड से इन द सेकंड चैप्टर? यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. यम पुराणो, ये क्या, ये आत्मा कितना है? पुराना है. सिर्फ क्या बदलता है? वो है शरीर. अदरवाइज द सोल इज द सेम. एंड ही इज सेइंग फ्रॉम टाइम इमेमोरियल दिस सोल एंड आई, वी बोथ आर देयर. फ्रॉम टाइम इमेमोरियल myself and the soul both are there. So what is changing? Changing is only the body. That is which is temporary. That which is temporary changes, that which is permanent remains the same. And what is permanent? God and soul. That is going to be eternal. That is not going to change. वो वही रहने वाला है. बट जो टेम्परेरी है वो चेंज होता रहेगा. कभी हम पैदा हुए 7.5 किलो के साथ, बड़े हुए अभी 80 किलो में मरेंगे, वापस 7.5 किलो से वापस स्टार्ट करना. अगर इंसान बने तो, बाकी कुछ जानवर बने तो उस हिसाब से. तो कहने का मतलब, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द another point and landing up in some other point. So bhakti semi sakha cheti rahasyam hi
etat uttamam. So please understand the qualities what Lord is saying for understanding the Bhagavad Gita. The first quality is he has to be bhakti se bhakto asi. भक्त होना जरूरी है. अब ये भक्त कैसे होते हैं? कुछ ऐसे होते हैं, है ना? ऐसा नहीं होते भक्त. भक्त कैसे होते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन? अरे क्या सब भक्त बनने आए ना इधर, तो मालूम तो होना चाहिए भक्त ऐसे दिखते हैं. पैंट शर्ट पहनेगा, पैजामा जवा कुर्ता पहनेगा, या सूट बूट पहनेगा, या टी शर्ट पहनेगा, कैसे रहेगा? बोलिए महाराज, भक्त कैसा रहेगा? उससे तो डिफाइन नहीं कर सकते. हाँ, तो what is the first, what is the qualification of a devotee? A person whose mind is always engaged in God, he is a devotee. Always he is thinking about God, but at the same time performs his duties. ऐसा नहीं मैं प्रभु जी मैं भक्त हूँ, मैं कुछ काम नहीं करता हूँ, पूरा दिन भगवान का भक्ति करता हूँ, ये भी गलत है. आपको अपना अपना कार्य करना है. इनफैक्ट भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, भाई युद्ध लड़ना है तुझे, तेरा कर्तव्य करना है, तू क्षत्रिय है, तुझे युद्ध लड़ना तेरा कर्तव्य है. प्लीज फाइट योर वॉर. देन सो फर्स्ट इज यू हैव टू बी ए भक्ता. सेकेंड क्वालिफिकेशन ऑफ अ भक्ता, ठीक है, always thinking of God. Is it enough? Following the instructions of the Lord is the second quality of a भक्ता. जो भगवान कह रहे हैं उस हिसाब से अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए. You have to live life as per what what instructions God has given you. नहीं तो you will collect information. If you want to have a transformation, you got to have just information is not enough, and information should give some transformation in your life. Then it is called as actual understanding of the Bhagavad Gita. जीवन में उतारना बड़ी बात है. सीखना तो हर कोई सीख लेते हैं, तोता भी सीख लेते हैं. You teach a parrot, वो भी बोलेगा राम नाम बोलो, राम नाम राम नाम राम नाम बोलते रहे, मगर क्या फायदा? जब किस दिन बिल्ली आएगी उसको गला दबाएगी, वो राम राम नहीं बोलेगा, तब क्या बोलेगा? की आवाज निकालेगा अपना. वॉट एवर द बर्ड स्क्रीमिंग नॉइसेस इट विल कम, बिकॉज ये उसने सिर्फ रटा है, जीवन में उतारा नहीं. जीवन में अगर उतार लिया होता ना, जब बिल्ली आके उसका गला पकड़ती तो वो तभी भी राम नाम लेगा. यही अंतर है भक्त में और दूसरे लोगों में. दिस इज द बेसिक प्राइम डिफरेंस, that he brings devotion in his life. He inculcates it in his life. Whereas many people, some people may just collect information. Fine. You may collect information, but that information is of no use unless until there is a transformation in your life. Now, these are the few qualities. Though it's not the end of the things, but otherwise I will be stuck only in this one verse today. So I want to complete 3-4 verses today. So Lord is saying, first and foremost, I am going to tell Arjuna, I am going to tell you this important knowledge to you. Why? First and foremost, you are my bhakta. Second, you are my sakha. Sakha cheti. What is he saying? Bhakto asmi sakha cheti. And then what is he saying? Rahasyam hi eta uttamam. ये रहस्य है. भगवद गीता एक रहस्य है. ये कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं. तो कितना बड़ा रहस्य रहेगा? You have to understand this is the biggest mystery, and we are trying to understand this mystery like this. Not possible. Bhagavan told this entire Bhagavad Gita, Acharya he said in 45 minutes, 45-50 minutes in the battlefield. Lord told the Bhagavad Gita, but after 50 lectures also I am brand new. I feel I have not learned anything after so many lectures. So the point is, this is a rahasya, and rahasya itna gehra hai, you can churn out from this unlimited things. Unlimited things can be churned out. But the thing is,
It has to be churned by the right person. Now let's come back to one point which Lord has said, that you have to be a bhakta. What is the meaning of bhakta? What is the definition for bhakta? Sorry, not bhakta, sakha. I'm sorry, sakha. What is the meaning of sakha? Tell me. Sakha matlab yari dosti wala. So how can you be a friend with God? वो तो ऐसे ही रोने में एक्सपर्ट हैं लोग, मंदिर के माँ के भगवान के सामने, और दुख रोते हैं, कभी सुख रोता है कोई? कभी जाके अपना सुख बांटते हो भगवान के साथ? हार्डली. टेल मी, हाउ मेनी टाइम्स यू रिमेंबर गॉड व्हेन यू गो टू वॉच अ मूवी, व्हेन यू गो फॉर अ नाइस पार्टी, व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ नाइस मूव लेट्स से रिसोर्ट और मॉल, और गोइंग फॉर सम परचेसिंग. आप जब ड्रेस रख के देखते हो तभी भगवान याद आता है? बी ऑनेस्ट, नहीं आता. यू आर वरीड व्हाट विल बी माई इंस्टाग्राम पोस्ट, विल बी what will people say about my Facebook profile and my Facebook, whatever it is, I don't know. I'm not on Facebook, that's why I don't know. But you are concerned about others, but you are not concerned about your God. And we are saying, I am bhakta, I am devotee, I am friend also. रोना जाके भगवान के पास रोना कोई दोस्ती का लक्षण नहीं है. See, in the Krishna Leela, when Krishna was playing with the Gwal Bal in Vrindavan, what did Krishna do? What did the Gwal Bals do when it was Aghasur story? Aghasur ka Leela tha. Aghasur was opening his mouth, huge and wide like a big cave, and all the children were entering. And when they entered inside that, they felt it's a new cave or something. But andar se, Aghasur, Agha means Papa. So he is a Pap ka Asur tha. So he had come in the form of a big snake with his mouth so wide open. So when they entered his mouth, Aghasur was waiting, ये आएगा फिर कृष्णा आएगा और फिर मैं सबको खा जाऊंगा. कंस का एजेंट था. तो यहाँ पे जब कृष्ण अपने सखाओं के साथ अंदर जा रहे थे, पहले तो सखा अंदर गए, अंदर से बहुत गंदा बास आ रहा था. क्यों? अघासुर है, अच्छी चीज़ तो खाएगा नहीं. क्या खाएगा? क्या खाएगा? मांस खाएगा, शराब पिएगा, सब गंदी चीज़ें, गलत चीज़ें खाएगा. सो दे आर गेटिंग अ वेरी फाउल स्मेल, बट दे वर स्टिल इंक्विजिटिव. अंदर कुछ होगा, अंदर कुछ साधु वाधु बैठा रहेगा, गुफा जैसा लग रहा है, सांप जैसा तो लग नहीं रहा है, तो विल गो एंड सी. तो अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो देन दे ऑल डिस्कस्ड. इफ इट इज समथिंग एल्स, इट्स अ डेमन और समथिंग, हम लोग मर गए तो दे ऑल सेड व्हाई शुड वी वरी? कृष्णा है ना, ही विल टेक केयर ऑफ अस. दैट कॉन्फिडेंस, दैट फेथ वन शुड हैव. वी डोंट हैव फेथ ऑन गॉड, वी लैक दैट कॉन्फिडेंस. हम लोग आज भी, हमारा हालत कैसा है? गजेंद्र जैसा है. गजेंद्र ने क्या किया? गजेंद्र जब अपने परिवार के साथ घूम रहा था, when he reached the nice lake in the त्रिकुटा पर्वत, और वहाँ पे जाके पानी में खेल रहा था, विचरण कर रहा था. डोंट वरी, दैट इज ऑल्सो अ नाइट रिसोर्ट. ही वॉज गोइंग इन अ रिसोर्ट. हाँ, जो भी कोई भी अच्छा रम्य स्थान है तो वो रिसोर्ट ही है ना. हम रिसोर्ट में जाके क्या ढूंढते हैं? ओह नाइस एम्बियंस, नाइस थिंग्स, स्विमिंग पूल. वो भी स्विमिंग पूल में उतरा तो अंदर ग्राह ने उसका पैर पकड़ा. तो व्हाट डिड ही डू ऑन द फर्स्ट इंसिडेंट? ही फर्स्ट ट्राई टू रिलीज हिमसेल्फ बाय हिज ओन पावर, खुद के बल से. जब खुद का बल नहीं चला तब क्या किया उसने? अपने रिलेटिव्स का बल मांगा. हम भी वही करते हैं, या तो खुद के ताकत में प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं. अगर नहीं हुआ तो अरे भाई तू मदद कर, दोस्त मदद कर, ये इससे उससे मदद मांगते हैं. जब सारे फेल हो जाते हैं, then we turn towards God. Then we look forward to God. God, now please, अब तू ही मदद कर, ये सब दुनिया ने धोखा दे दिया, अब तू ही मदद कर. But on the first incident, who are those who call to God? It's only a devotee who on the very first instance calls to God. भाई भगवान जो भी रखना है राखो, भी मारो भी, जो इच्छा मार. उनको रखना है रखो, मारना है मारो, जो भी हो इच्छा तुम्हार, आपको जो करना है करो. दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
a devotee and a pseudo devotee. A pseudo devotee may externally look like a devotee, but will not be in the core, will not be dependent on Krishna. That doesn't mean one becomes lazy. Many people, I don't want to cook, Krishna khila dena. No, you want to get up and you want to work, you don't want to earn, you don't want to cook, then that's not true. You have to put your efforts. Efforts डालने के बाद मिले न मिले वो बात की बात. Really a small story of how one devotee who becomes how a person actually has connection with God. That's one. चोखा मेला बोल के एक भक्त थे, महाराष्ट्र के, कहाँ के, पंढरपुर के. उनका स्टोरी बताता हूँ. आज के युग में आज का स्टोरी है, कोई सत्ययुग त्रेता युग का कहानी नहीं है. एंड ही वॉज बॉर्न विदाउट एनी फादर एंड मदर. खुद पैदा हुआ. हाउ आई टेल यू द स्टोरी हाउ ही वॉज बॉर्न लाइक दैट. It so happened once that two devotees, a couple, husband and wife. They are not very rich, quite poor, गरीब थे. बट उनके मन में इच्छा थी जाके मैं पंढरपुर जाऊं और पंढरीनाथ का दर्शन करूं. निकले. पैसा नहीं था, बट भगवान के लिए कुछ भोग लेके जाने का इच्छा था. तो उन्होंने बोला क्या करें, भगवान के लिए क्या लेके जाएं. तो लकीली इट वॉज समर टाइम, तो आम ले लिया उन्होंने. कुछ आम लिए, बड़े मुश्किल से लिए और आम लेके निकले. और रास्ते में जब जा रहे थे, भगवान स्वयं एक साधु बन के आया. अरे महाराज बहुत भूख लगी है, काफ़ी दिन से खाना नहीं खाया है, आप अगर आपके थैली में से आम की खुशबू आ रही है, आप एक आध दो आम खिला दोगे तो अच्छा रहेगा, बहुत भूखा हूँ मैं. तो तुरंत he felt, नहीं, he and his wife both felt, नहीं ठीक खिलाना पड़ेगा उनको. तो immediately what he did, he gave. साधु भी बैठ गया, हस्बैंड वाइफ भी बैठ गए और उन्होंने खिलाया. और भगवान ने स्वयं वो आम चूस के खाए. और चूस के खाने के बाद क्या किया, जो गोटली था फेंकना चाहिए ना, उठा के वो मैया जो बैठी थी ना, जो ब्राह्मणी जो बैठी थी, उसके गोद में डाल दी, मतलब उसके आंचल में डाल दिया. उसके आंचल टक 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 चूसे डाले. अगर हमारे जैसा कोई रहता तो क्या बाबा, ऐसा बाबा आज के ज़माने में खा रहे हो और गंदगी हमारे पत्नी के आंचल में डाल रहे हो. बट इन्होंने अच्छे भाव से लिया, सारे आम खा गए. सारे आम भगवान खा गए. प्रेम भाव, जिस भाव से लिया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. वहां जाके पहुंचा, अंदर दिया, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट. कई लोग जाके पूछते हैं, अरे मंदिर में क्या खिलाने की जरूरत क्या है, देखो ये भगवान तो खाते नहीं है, वो तो सिर्फ विग्रह हैं, खाते नहीं है. सब खाने वाले तो पुजारी और पंडित खाने वाले, देखो खा खा के मोटे हो गए. अरे भाई, आपका काम तो सिर्फ भाव पहुंचाना है, कौन खा रहा है ये देखना आपका काम नहीं. Story inside story. When Yashoda Maiya was, Krishna and Yashoda Maiya were in Vrindavan, that time you must have all heard about the fruit seller story. फल लेके आई थी ना, वो आई थी और उसने बोला कृष्ण क्या दोगे तुम एवज में. तो गया, एक मुट्ठी अनाज लेके आया और उसमें भी सब, कृष्ण का एक तो हाथ छोटा, कितना अनाज आएगा, दाने कितने आएंगे, उसमें से भी कुछ रास्ते में गिर रहे हैं. 3, 4, 8, 10 दाना अनाज के दाने मुश्किल से आए. बोला बार्टर सिस्टम चलता था तभी, तो उन्होंने अनाज दिया. तो मैया ने कृष्ण का चेहरा देख के इतनी रीझ गई, उसने सारे आम उठा के दे दिए, लो खाओ. एक्चुअली वो जंगली आम थे, जंगली फ्रूट्स थे, नॉट आम, फ्रूट्स. सो शी कलेक्टेड, कृष्ण कलेक्टेड दोज फ्रूट्स एंड ही केप्ट इट. यशोदा मैया केम एंड शी सॉ, अरे ये जंगली फ्रूट्स क्या खाएगा तू, मेरा लाला नंद का दुलारा ये खाएगा, उठाओ हटाओ ये सबको. सब हटाया. सारी जहाँ पे जितनी गोपियाँ काम कर रही थी ना घर पे, मेड सर्वेंट्स, सबको एक एक फल दे दिया. एक भी फल कृष्ण ने नहीं खाया. कृष्णा डिड नॉट ईट इवन अ सिंगल फ्रूट. सभी गोपियों को दे दिया. एंड क्या किया, कृष्ण के लिए, बेटा मैं तेरे लिए बढ़िया फल लेके आई हूँ, ये ले खा.
उसको बढ़िया बढ़िया आम, केले, ये वो सब फल दिए उसको. मगर by the time the fruit seller went home, that lady went home and she opened her basket and she saw, what did she see? The basket was full of gems. Technically speaking, अगर कृष्ण ने खाए हो तो देना चाहिए. कृष्ण ने तो खाया ही नहीं, फिर भी उसको क्यों मिले? उसने सिर्फ भाव ले लिया. The bhav of offering it to the Lord, Lord took it, and rest. What is the gross fruit? For Krishna, what can we offer? वन में से प्रभु जी आज मैंने बढ़िया खीर रबड़ी बनाई और भगवान को ऑफर किया. अरे जो राधा रानी बना के जो कृष्ण को खिलाती है वो आप जिंदगी में बना सकते हो क्या? कैन वी एवर मेक? जो लक्ष्मी देवी जो विष्णु के लिए बना के खिलाती हैं, आप बना सकते हैं क्या? आप और मैं बना सकते हैं क्या? तो कृष्णा इज नॉट वेटिंग फॉर दिस फूड, ही इज वेटिंग ओनली फॉर दिस भाव. रही बात भगवान, नहीं तो रोज कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए खड़े हो जाते थे. जगन्नाथपुरी में जाके खड़े हो गए, कुछ खिला दे, कुछ खिला दे, माँ खिला दे. खिचड़ी कोई रॉयल फूड नहीं. रोज टिल द डे शी डाइड. एंड द डे शी डाइड, कर्माबाई के सामने रो रहे हैं कि भाई आप मुझे खाना कौन खिलाएगा. उस दिन से लेके आज तक जगन्नाथपुरी में सुबह फर्स्ट भोग खिचड़ी लगता है. और क्या बोल के लगता है जगन्नाथ जी को कि ये कर्माबाई का खिचड़ी है, प्लीज खाइए. और आज भी भगवान भोग लगाते हैं उसको. सो प्लीज रिमेंबर, व्हाट क्वांटिटी एंड व्हाट क्वालिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द भाव बिहाइंड ऑफरिंग इट टू लॉर्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू आर ऑफरिंग. बट इसका मतलब ये नहीं कि ऑफर एनी नॉनसेंस. हाँ, कल प्रभु जी don't offer any nonsense food to God, but what is more important is that's why Lord has said patram pushpam phalam toyam. जो मैं भक्तिया प्रयच्छति, जो भक्ति से मुझे देगा, तष्टाम भक्त उपहर्तम अश्नामी प्रयतात्मना. द वर्ड अश्ना मीन्स आई ईट. अश्नामी, आई विल ईट. प्रयतात्मना, किसका? जो भक्ति से मुझे खिलाएगा उसका मैं खाता हूँ. रामचंद्र जी ढूंढ ढूंढ के गए, किसके लिए? बेर खाने के लिए. जंगल जंगल ढूंढ के गया. एंड द वे ही वॉज ईटिंग ना, ही वॉज रिलिशिंग. लक्ष्मण को आया गुस्सा. 13 साल से खिला रहा हूं. 13 साल लक्ष्मण ने खिलाया ओनली कंदमूल और फल फूल. तभी इतना आहा लक्ष्मण अच्छा है, अच्छा कभी बोल के नहीं खाया. मगर शबरी के बेर आहा बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, खा रहा हूं. लक्ष्मण इज वंडरिंग व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इट. उन्होंने भी एक दो देखा, जस्ट लाइक ए नॉर्मल बेर. ही इज नॉट एंजॉइंग द बेर, ही इज एंजॉइंग द भाव. शी हैज वेटेड फॉर सच ए लॉन्ग टाइम. जवानी से उसने सेवा शुरू किया था, राह देख रही थी. बुढ़ापे में जाके भगवान रामचंद्र जी आए. उतना दिन का जो रहा तपस्या जो किया ना, वो तपस्या का फल खा रहे थे भगवान, ना कि वो बेर खाने के. वो भी जंगली फ्रूट है, वो कोई हाइकन हाइफंडा हाइब्रिड एंड ऑल दैट, क्या आजकल का आता ना ऑर्गेनिक एंड दिस एंड दैट, वो वाला फ्रूट नहीं था. व्हाट इज जस्ट सिंपल बेर, जंगली बेर था वो. सो कमिंग बैक ओवर हियर टू आवर चोखा मेला स्टोरी. तो सब मुटली उसके डाल दिए, सब खा गए और शुक्रिया बोल के चल दिए. अब ये साधु और साधुनी बोले ठीक है, ये प्रसाद है, ये साधु ने खाया हुआ भोजन है और उनका प्रसाद खाना, उच्चिष्ट खाना अच्छा है. यहाँ पे एक भाव प्लीज समझ लेना, उच्चिष्ट शास्त्र मना करता है खाने का, और किसका मना करता है और किसका खाने अलाउ करता है? सिर्फ 2 व्यक्ति का अलाउड है. भक्त भगवान का उच्चिष्ट खाता है. Whatever food is offered to Lord, the remnants are eaten by the devotees. And why it is eaten? Because many times many people come and tell me, Prabhuji, the khichdi is very nice. Prabhuji, the sabji is very nice. अरे it is nice because भगवान की लाद लगी है उस पे. Like children saliva drips na. Lord saliva also drips in this food. That is why it is tasty. It's not tasty because it was cooked with nice. Now you should read the menu of some 5-star hotel.
smashed potatoes with toasted in this and that and stewed with steamed rice and this. और क्या, my God, simple बटाटा वड़ा को इतना complicated? हाँ, you just go and read in 5-star hotel बटाटा वड़ा का description. One of my god brother was from the club. He was working for Taj. Then he came to the club. So he used to tell me, smashed potatoes with the right blend of spices. Right blend of spices dipped in what is that? Gram flour in a right temperature and strewed with and to a light brown color. इतना बड़ा पैराग्राफ एंड में देखा तो बटाटा वड़ा. So sometimes I tell you, तो भाव से खाए, भगवान खाए एंड चले गए. तो ये उन्होंने बोला प्रसाद है, तो प्रसाद को खाना चाहिए. तो भक्तों को हमेशा भगवान का प्रसाद खाना चाहिए या साधु संतों का बचा हुआ उच्चिष्ट क्यों खाना चाहिए? That consciousness comes inside you. Why we should not eat others' remnants? Because their bad consciousness, उनकी बुरे भाव जो है वो आपके अंदर आ सकते हैं. उनके अंदर आपके अंदर आ सकते हैं. सेकंड, अक्सर कहा जाता है पति परमेश्वर होता है, पति का उच्चिष्ट खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, और ऐसे कहते हैं उच्चिष्ट नहीं खाना चाहिए. देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. यस, अगर पति भक्त है, भगवान का सेवा कर रहा है, देन उसका उच्चिष्ट खाने में कोई गलती नहीं है. मगर वो अभक्त है, गलत चीज खा रहा है, तो उसका उच्चिष्ट खाना पाप है. सो don't take Shastra in one bracket. It has got ifs and buts. When I was doing my, way back in 82, 83, no, sorry, 87, 88, when I was doing my programming in NMIMS, that time NMIMS college was very small. I was doing my basic and cobalt and all that. So there it used to say, that it used to be a simple language. Go F1, take input. If it is yes, go to line 10, or else go to line 4. So that used to be the command used to be. So it's like this. You can't take in Shastra as everything as a one bracket. It has got many ifs and buts. Understanding has to be more deeper. Understanding has to be more deeper. तो यहाँ पे उन्होंने वो जो आम की चूसी हुई आम की गुठलियाँ थी, ये थी, वो उनके इसमें थे. तो बोले ठीक है, आगे जाके खाते हैं, चलते हैं. तो उन्होंने अपना पल्लू ऐसे बांध के उठा के चलने लगे. अभी हस्बैंड वॉज वॉकिंग फास्टर, तो वो आगे निकल गए, ये पीछे पीछे आ रही है. अचानक देखा भारी हो गए, तो पल्लू बिकेम भारी, द वेट इंक्रीज्ड. खोल के देखा तो अंदर बच्चा. There was a child inside. Child is same as chokha, chokha mela. Chokha means, what is the meaning of chokha? Nice. So cleaned. She cleaned him. Because चोखा करना पड़ा ना, गुटलियों के बीच में से आए ना, वो गुटलियों के बीच में से आए, जो उनको क्लीन किया. और अब बोली, अब मैं जाके उनको बोलूँगी बच्चा कहाँ से आया, तो वो मानेंगे नहीं. Nobody will accept ना कि गुटलियों में से बच्चा आया. तो what do I do? She said, let me put this child in the side. तो उन्होंने अच्छा पत्तों का एक बिस्तर बनाया और वहाँ पे बच्चे को छोड़ के चले गए. एक लोअर कास्ट के दंपति जिनको बच्चा नहीं था, उनको वो बच्चा मिला, उन्होंने उस बच्चे को बड़ा किया. बचपन से वो भक्त था. एक बार वो लेके गया भगवान के पास सामने, कुछ फल लेके गया. तो लोगों ने उसको बोल दिया, तो यू कांट एंटर द टेम्पल, गेट आउट, यू आर नॉट फिट फॉर इट. चला गया. नेक्स्ट डे भगवान स्वयं आए, पंडितनाथ जी उनके घर पे आए. बोला, प्लीज गिव मी योर फ्रूट्स व्हाट यू बॉट फॉर मी. सो व्हाट फ्रूट्स यू आर आस्किंग अबाउट? Yesterday they kicked me out of the temple. That time you were quietly watching.
You didn't say anything. Now you are coming and asking me. I said, Lord, yes. How can I speak to them? जो मुझे पत्थर समझ के पूजा करते हैं मैं उनके लिए पत्थर हूं, और पत्थर कभी बात करता है क्या? अगेन व्हाट डज दिस मीन? आप किस भाव के साथ भगवान के साथ आदान प्रदान करते हो? वो क्या समझते हैं मुझे? पत्थर. So they think I am a stone, and a stone doesn't talk. You don't consider me as a stone, you consider me as Lord, so I talk with you. So I come here to eat. तो उनके टूटे हुए खाट पे बैठ के भगवान ने खाए. बोला अच्छा. एंड में बोले 4 केले दे दो मुझे, लेके जाना. तो उसने बोला किसके लेके जा रहे हो? क्या है ना, कल आप आके गए तभी से मैं भूखा था, कुछ खाया नहीं पूरा दिन, तो मेरे साथ मेरी पत्नी रुक्मिणी भी कुछ नहीं खाई, वो भी भूखी बैठी थी, तो उसके लिए लेके जा रहा हूँ. अच्छा ठीक, लेके अपने धोती में गांठ बांध के लेके गए. वहाँ मंदिर खोला. नेक्स्ट डे शाम को, उस दिन शाम को हुआ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग मंदिर खोला तो वहाँ पे भगवान के धोती पे केले. ये आदमी घुसा कैसे अंदर? मंदिर वाले लोग यही आके करके गया रहे अंदर. कोई किसी की हिम्मत नहीं है, मंदिर को छुआ, विग्रह को छुआ, पकड़ के मारो उसको, जाके उसको मार के, जाके उसको मार पीट के ठीक करके आ गए. जैसे वो आए वापस इधर अपना मंदिर में वापस आए, ये लोग भगवान का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, दरवाजा खुल नहीं रहे. भगवान ने अंदर से, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मंदिर में कभी भी अंदर से कड़ी नहीं होती है. मंदिर, कोई भी मंदिर में देखो बाहर से कड़ी होगी, अंदर से कभी कड़ी नहीं रहेगी. बट ये अंदर से भगवान ने बोल दिया नहीं, मैं नहीं खोलूंगा. सबने भगवान माफ करो, क्या गड़बड़ है बताओ. तो उन्होंने बोला हाँ. तो उन्होंने बोला देखो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपने मेरे भक्त को अपमान किया है, जाओ पहले उससे माफ़ी मांगो, पालकी लेके जाओ, उस पालकी में बिठाओ, श्रृंगार करके लेके आओ मेरे पास. ठीक है, ये लोग गए, पालकी लेके श्रृंगार करके लेके आए. तो कहने का मतलब क्या है? दिस इज द स्टोरी ऑफ चोखामेला. इतना बड़ा भक्त है, इसका भाव ये है कि आज भी आप पंढरपुर मंदिर में जाओ, ठीक पंढरनाथ के सामने उनकी समाधि है, इनसाइड द टेम्पल के राख की समाधि है, नामदेव जी ने रखवाया वहाँ पे. पॉइंट इज भक्त और सखा. ये जो आप अभी जो कथा सुनी आपने, वो कैसा था? सखा भाव. भगवान कैसे दोस्त बन के व्यवहार कर, और मुझसे भी है. हाँ, मेरे को पीट रहा था तब क्या कर रहा था तू? दिस इज सखा भाव. जो ग्वालबाल्स इंटरेक्टेड विद कृष्णा वॉज सखा भाव. दिस सखा भाव इज मीन्स इट्स अ पर्सनल, इंटीमेट. There are certain things a person may not tell his parents, but will share with his or her friend. That is what is Lord says, make me your intimate friend. And since you are my intimate friend and my best devotee, that is why I am going to give you this rahasya. Who's going to read the purport for me? There are two classes of man, namely devotee and the demon. The Lord selected Arjuna as the recipient of this great science owing to his being a devotee of Lord. But for the demon, it is not possible to understand this great mysterious science. There are a number of additions to this great book of knowledge. Some of them have commentaries by the devotees and some of them have commentaries by the demons. Commentation by the devotees is real, whereas that of demon is useless. Arjuna accepts Sri Krishna as Supreme Personality of Godhead, and any commentary on the Gita following in the footsteps of Arjuna is real devotional service to the cause of his great science. The demonic, however, do not accept Lord Krishna as he is. Instead, they concoct something about Krishna and mislead general readers from the path of Krishna's instructions. Here is a warning about such misleading paths. One should try to follow the disciplic
succession from Arjuna and thus be benefited by this great science of Srimad Bhagavad Gita. और प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद इज ट्राइंग टू से कि दैट कि भाई आप कोई भी किताब उठ के मत पढ़ना, कोई भी किताब मार्केट में आपको आज व्हेन श्रील प्रभुपाद रोट भगवद गीता देयर वर 700 commentaries already available in the Bhagavad Gita in the market. But what is this? What's so special? आप बोलेंगे प्रभु जी आप इस कौन से इसके लिए आप बोल रहे हो, आपका मार्केटिंग कर रहे हो, आपका माल का तारीफ कर रहे हो. इट्स नॉट दैट. द थिंग इज दिस इज द भगवद गीता विच ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ इवन द हिप्पीज. Rest already there are so many Bhagavad Gitas. Why couldn't they transform the life of the people? ऑलरेडी इतने भगवद गीता मार्केट में थे, उसमें और इनमें अंतर क्या था कि एक भक्ति भाव से लिखा था उन्होंने, और ये भक्ति भाव से जब लिखता है व्यक्ति तो लोगों के अंदर भी भक्ति का अंकुरण होता है. इट ऑल्सो ट्रांसफॉर्म्स द लाइफ ऑफ अदर्स ऑल्सो. सो like there are so many foodstuffs available in the market. Why one is something special? He adds some special ingredient. So in case of Bhagavad Gita, in case of spiritual books, there is a special ingredient of devotion. One may write mechanically, one may write with logic, one may write with just whimsically thinking about his own thought process. जैसे अभी मार्केट में देवदत्त भट्टनायक का नंबर चल रहा है. आई कॉल हिम भट्टनायक, नॉट पटनायक, बिकॉज इट्स ऑल नॉनसेंस, all mental concoctions, because he doesn't know what is the understanding of devotion on the very first self. And that's why it is said, that's why Lord clarifies कि भाई you have to be a devotee to understand, and only when you have understood you can tell others. When you yourself are not understood, how can you tell others? So next, Arjun immediately shows his sakha bhav. And what is the sakha bhav? He asks, he says, aparam bhavate janma param janma vivasvanah katham etad vijanyamaham tam adau proktam iti. What does this mean? He says, Arjuna says, the sun god Vivaswan is senior by birth. To you he is senior by birth. मतलब आपका जन्म तो अब हुआ है, sun god का बहुत पहले हुआ है. तो इसे अर्जुन says, the sun god Vivaswan is senior by birth to you. How can I how am I to understand that in the beginning you instructed the science to him? Question is technical. Second, you think Arjuna is dumb? Arjuna represents us. We are all having this type of तर्क है ना, हमारे अंदर तर्क ज़्यादा है. Speculations, and it's the word tark doesn't actually goes to speculation. We try to logically or illogically try to find the logic behind it. We illogically try to find logic behind it. Always one person was going, घर से काम से आया, एक दिया लिया और जला के गया, मंदिर जा रहा था. तो रास्ते में एक आदमी मिला, बोला कहाँ जा रहा है? मंदिर जा रहा हूँ. ये दिया घर से क्यों लेके जा रहा है? बस हमारे घर पे परंपरा है, हम लोग हमेशा लेके जाते हैं. मतलब घर का परंपरा गलत हो तो करते रहोगे क्या? लॉजिक. बोला मालूम नहीं, लेके जा रहा हूँ. फिर उसने पूछा, देखा ये दिए में लाइट कहाँ से आया? ये लैंप में जो अग्नि की लाइट है वो कहाँ से आई? इसने बोला अभी भी देखूँ और जवाब दूंगा तो लफड़ा है. फूक मारा, उड़ा दिया. बोला कहाँ क्या किया तूने? जहाँ से आई वहाँ भेज दिया. जहाँ से आई वहाँ भेज दिया. तर्क का कोई अंत नहीं. सो डोंट ट्राई टू फाइंड. तर्क मत करना भगवान के मामले में, तर्क मत करना. यू मे से प्रभु जी दैट मीन्स शुड वी एक्सेप्ट व्हाट यू से ब्लाइंडली? See, what we say is secondary. We can say only what the acharyas have said. Acharyas have understood God. They have interacted with God. So they will tell us in what way we have to understand these things. So acharyas are the people who can guide us. So here acharyas say, he has given us this knowledge only, he asked this question only to give us knowledge. हमको ज्ञान लेना है, इसके लिए उन्होंने ये सवाल पूछा है, ना कि उनको ज्ञान नहीं था. क्या अर्जुन को अच्छे से ज्ञान था?
जो कृष्ण के साथ उठते बैठते खाते पीते सो रहे हैं, वो व्यक्ति को तो क्या भगवान का नॉलेज नहीं है या भगवान के बारे में पता नहीं है, बट स्टिल ही इज आस्किंग ऑल दिस क्वेश्चंस ओनली टू सो दैट कल ये कॉन्वर्सेशन लिखा जाएगा और हम जैसे थोड़े बुद्धि भ्रष्ट लोग जो हैं थोड़ा ज्ञान लेंगे हम लोग. सो फॉर दैट भगवान आंसर्स. श्री भगवान उवाच बहुनेमि व्यथितानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि ताम वेद न ताम वेद प्राणतपः. So what does he say? The personality of Godhead said, many births both you and I have passed. Many births both you and I have passed. I can remember all of them, but you cannot, O subduer of enemy. So what does this mean? मैंने और हम मतलब भगवान और हम आत्माएं कितने जन्म लिए हैं हम तक अभी तक? कैन वी एवर काउंट, हैव अ काउंट, हैव अ ट्रैक? बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बर्थ वी ऑल हैव टेकन, बट वी डोंट हैव अ ट्रैक. You know, when I was reading Padma Puran, sorry, Garud Puran, so I was discussing about, I was reading that book. That time, very nice. Garuda is asking Vishnu, and Vishnu describes all the pain a person undergoes at the time of birth in the mother's womb. विस्तार में बताया गया कि कितने गर्भ में कैसे रोता है, कैसे मतलब लाचार रहता है. इट इज़ रियली ट्रबल टू द कोर एंड ही बेग्स कि भाई मैं आगे जाके नहीं करना चाहता हूँ, मैं वापस जन्म नहीं लेना चाहता हूँ. इट्स इनफ. इट्स मोस्ट पैथेटिक. माइंड यू, वी ऑल हैव अंडरगॉन दिस. वी ऑल बीन इन द मदर्स वूम, वी ऑल अंडरगॉन दिस. बट जब भगवान उसमें एक स्टेटमेंट राइट्स, अ वेरी नाइस ब्यूटिफुल वर्ड्स. ही सेज, if had anyone been able to remember the pain he undergoes in the crematorium and in the womb, one would never take birth again. The tragedy is we both forget both the pains, the one at the time of death and at the time of birth. Both extreme ends of pain. The Lord says when the air, when at the time of delivery, when the air comes and pushes the child out of the mother's womb, the child undergoes maximum. No, the mother also undergoes pain, but the pain what the child undergoes is worst and comes out just like in a, through urine and fecus. All that the child comes out, which is floating inside that. And for it again to switch on to environment, he is switching in a different environment, and immediately he has to switch on to another environment where he has to take natural oxygen and air, which is not getting it inside in the mother's womb. So there is a switch. That switch is supposed to be very, very painful. For a few seconds for the child to adjust, it's very difficult. And then he is lying on the bed, said the skin is so tender, there is something called mites which are there, they call as mites on the bed. Even it is there in our beds also. And it is said, this science, in science it is mentioned, we leave skin, cells of the skin falls. Dandruff to दिखता है, ये दिखता नहीं, but ये भी छोड़ते हैं हम लोग. And this is eaten by those mites on the bed sheets, It is eaten. It is also a yoni. It is also a yoni, and it is eaten. And these mites bite the child. भले आपने धो के डाला हो, ये mites तो रहते ही हैं. The child's tender skin is being bitten by these mites, and that is why the child cries, not knowing what to say. तो कहने का मतलब भगवान क्या कह रहे हैं, दिस बर्थ एंड डेथ, ये दोनों का पेन इतना खतरनाक है, इतना मतलब ट्रबलसम है, अगर कोई व्यक्ति को याद रहे ना तो वापस जन्म लेने का सोचेगा. और हम लोग क्या करते हैं, हर काम करते वक्त यही सोचते हैं, इवन अच्छा काम करते वक्त भी, चलो कुछ नहीं तो अगले जन्म में काम में आएगा. अरे अगला जन्म क्यों लेना है भाई? अगला जन्म लेना है तो यू हैव टू अंडरगो द टॉर्चर ऑफ डेथ एज वेल एज बर्थ. बोथ द टॉर्चर्स यू हैव टू अंडरगो. दिस इज द प्रॉब्लम.
So he is saying, I have undergone many births, you and I have undergone. भगवान बर्थ लेते हैं, जन्म लेते हैं? हाँ, अवतार होता है, बट अवतार लेते हैं, क्यों लेते हैं? अपने घर में बढ़िया रह सकते हैं ना, क्या जरूरत है? एंड वो तो क्या, एक इट सेड, एक आईब्रो अगर ऊपर करते हैं भगवान तो ब्रह्मांड हिल जाता है. हाँ, ब्रह्मांड हिल जाता है सिर्फ एक आईब्रो, क्या भ्रूएं बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, बॉडी हिंदी, वो भ्रू को ऊपर करने से ही पूरे ब्रह्मांड हिल जाते हैं. तो उनको यहाँ आके स्पेशली आके मारना पड़ता है, सब करना पड़ता है, जरूरत क्या है? दैट इज वाई he says the next 3 verses, very important. I will take the next verse and then I will stop, because the next 2 verses are the famous B.R. Chopra's verses, जो आपको मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ही बोलोगे, यद धर्मस्य वाला. बट थैंक्स टू B.R. चोपड़ा दैट उन्होंने ये वर्स को इतना फेमस कर दिया. अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्व अधिष्ठाय स्व मायाया संभवामि आत्मा मायाया. He says, although I am unborn, that is why he is first, in the first verse he is saying, I have taken many births, you and I have taken, I remember all the births, but you don't remember. But in this verse, Lord is specifically saying, although I am unborn, I am Aja. Well, the word used is Ajo api san. The verse itself starts with Ajo. Aj 3 चीज को कहते हैं संस्कृत में. Unborn God is called Aja. Brahma ji is called Aja because he is also unborn. And goat को भी अज कहते हैं. गोट को भी अज कहते हैं. तो अगर संस्कृत में एक वर्ड अज बोल दिया तो इसका मतलब एक कोई भी एक वर्ड एक एंगल से मत पकड़ना उसको. यू हैव टू सी इट विद द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. गोट. सो अजो अपिसन अव्ययात्मा. सो व्हाट इज लॉर्ड सेइंग हियर इन दिस? ऑल्दो आई एम अनबॉर्न and my transcendental body never deteriorates. Why does Lord's body never deteriorate? So, what's so special? We are having 2 bodies. हमारा 2 शरीर है. कौन सा 2 शरीर है? एक ग्रॉस और एक सटल. और उसके बाद आत्मा. ग्रॉस ये पंचभूत वाला शरीर जो अर्थ वाटर फायर आयर रेतर वाला शिव शरीर है, जो हमको एक दिन छोड़ के जाना है, जिसको सिर्फ जलाकर भस्म करना है. दूसरा माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो. दीज 3 फॉर्म्स अ सटल बॉडी which travels with the soul to the next body. That's why you are able to remember what you were in many cases. You are able to remember your last birth, your previous birth. This you are able to remember. So although I am unborn, my transcendental body never deteriorates, and although I am the Lord of all living entities, मैं सभी जीवों का मैं भगवान हूं, I still appear in every millennium in my original transcendental form. What's so transcendental form? What does this mean? Tell me, what did you understand by transcendental form में भगवान आते हैं? हाँ, 4 भुजा रूप नहीं, वो एक्चुअल ट्रांसफॉर्म फॉर्म का मतलब नहीं है. अरे भगवान जब भी धरती पे आते हैं, भले दिखें कि भाई एक कटोरी छाछ के लिए गोपी के सामने ठुमक नाचते हैं बाल कृष्ण, मगर जब राक्षसों को मारने की बारी आती है, बिना एक हथियार के सबको मार रहे हैं. प्रणवात को सिर्फ वजन बढ़ा दिया और मार दिया. पूतना को सिर्फ स्तनपान कर रहा है, सकिंग द मिल्क, एट द सेम टाइम इज सकिंग द लाइफ एयर ऑल्सो आउट ऑफ हर. शक्टासुर को एक लात मारा, शक्टासुर मर गया. बकासुर जैसा कि कोई नूडल्स तोड़ रहा है वैसा तोड़ दिया, दोनों बिक्स तोड़ दिए. सो ऑल द असुरस ही किल्ड विदाउट एनी प्रॉब्लम. कैचिंग समवन्स लेग, throwing them down, कालिया के ऊपर डांस कर रहे हैं. These are all something which are transcendental, which are not common, which cannot be digested by people at large.
So that is why Lord says, I appear in my original form. You know, another nonsense video which is moving around in WhatsApp. भगवान कृष्ण को मार दिया था जरा नाम का एक हंटर ने, फिर उनकी शरीर को जला दिया, उनका शरीर जल गया, सिर्फ उनका हार्ट जला नहीं, और वही उठा के जगन्नाथ जी के इसमें डाल दिया. सच नॉनसेंस नॉलेज. दैट मीन्स व्हाट? तुम भगवान को भी अपने लेवल पे लेके आ रहे हो. तुम तो अपने स्तर को भगवान के लेवल पे तो जा नहीं सकते हो, तो भगवान को अपने लेवल पे लेके आ रहे हो. यू मीन टू से भगवान इज ऑल्सो हैविंग अ हार्ट लाइक योर्स? नहीं, भगवान है, उनका हार्ट जलता नहीं है, उनका हार्ट तभी भी चालू है, उसको उठा के जगन्नाथ जी के ऊपर डाल दिया. दैट इज दैट ब्रह्म स्टफ विच इज चेंज्ड एट नवकलेवरम. दिस टाइप ऑफ नॉनसेंस वीडियोज आर वेरी वेरी डेंजरस. दिस ओनली इज पॉसिबल बिकॉज हमारी अज्ञानता की वजह से हम लोग इन चीजों को देखते और उसमें मजा भी ले रहे हैं. क्या ज्ञान का बात बोला. अरे उनका तो सिर्फ वो नंबर ऑफ व्यूज बढ़ा रहे हैं वो लोग. ज्ञान ये असली ज्ञान नहीं है. दिस इज नॉट रियल नॉलेज. हाउ कैन लॉर्ड इज सेइंग आई माई बॉडी नेवर डिटरेट्स, एंड वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ कृष्णा's body being burnt? Something which is illogical. Cannot be, sing. रामचंद्र जी का केस में क्या हुआ? वो आग पानी में डूब गए. अरे काहे के लिए डूबेंगे भाई? क्या सुइसाइडल टेंडेंसी था उनसे, और पूरा अयोध्या के सारे लोगों को लेके चलो मास. वो जापान में हुआ ना बीच में ऐसा मास सुइसाइड. अरे दी वेंट क्लियर कट लिखा गया, वेंट बैक टू भगवत नाम लिखा गया, शास्त्र में लिखा है. समझने को तैयार नहीं है. पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाई. अच्छा, देयर इज अ लॉजिक आल्सो. व्हाई लक्ष्मण वाज सेंट अहेड? व्हाई लक्ष्मण वाज नॉट टेकन विद हिम? व्हाई लक्ष्मण वाज सेंट अहेड एंड देन ही एंटर्ड इनटू सरयू? क्यों लक्ष्मण को फिर दुर्वासा मुनि को वो जो लीला था वो लीला करके, यू नो दैट लीला ना? क्या हाँ ना कुछ तो बोलो. No, then I will take next time because already it's 12:20. I have to take because it's a long story. There's a Leela. Why? All of you know about the end of Ramchandra ji. Went into the Saryu, and from there the Viman came and he went back to Vaikuntha and he took all the Ayodhya vasis. But Lakshman को निष्कृत कर दिया. क्या बोलते हैं वो? निष्कासित कर दिया. Thrown out of Ayodhya. And उसके पीछे कारण है. He was thrown ahead. पहले उनको भेजा गया, बाद में. क्यों? बलराम जी हमेशा पहले जाते हैं. शेषनाग पहले जाके तैयारी करेंगे. पहले इवन जन्म लेने के पहले, कृष्ण के जन्म लेने के पहले बलराम जी क्यों आए? तैयारी करने के लिए. He prepared the bed. Lord of course never went in the womb. Lord never goes in anyone's womb. He always appears. Here also he says, I appear in my transcendental form. I appear. Since we are less intelligent, we are less foolish, we are not able to comprehend that. Oh, how can Lord appear like that? हमारा दिमाग छोटा है. We are not able to conceive that idea in our mind. That is where the problem lies. So he says, although I am unborn and transcendental body never deteriorates, please understand, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते हैं. He is नव यौवनम च, always as he is. 125 years he spent on this earth in Krishna लीला. कभी भी कहीं भी आपने देखा नहीं रहेगा कृष्ण की दाढ़ी बढ़ गई, 125 साल के हैं, वाइट हेयर हो गए, किधर भी नहीं, कहीं भी नहीं. Krishna was as he was when he was a great grandfather also. He was Navva Yovanam. He never deteriorates. And although I am the Lord of all living entities, I still appear. मतलब मुझे जरूरत नहीं. He is putting the stepping stone for the यदा यदा ही धर्म से का stepping stone डाल रहे हैं. ये वर्ड्स में stepping stone डाल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? It is because of though I am the Lord. मैं आज भी भगवान हूँ. मैं अगर नीचे आया हूँ तो ये मत सोचना कि मेरी कोई मजबूरी है. But still I come. क्यों आता हूँ? फिर यानी से पवित्रणाय साधुना वो बाद में बोलते हैं. And
मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द श्लोका में संभवामी आत्म मायाया. What is the meaning of this Atma Mayaya? It is because of my own Atma Maya. मेरा खुद का desire है आने का. Nobody can force me. Our birth is by force. You have no option. You have to take birth. We can't choose. I can't choose. I want a rich father, mother. I want a poor father, mother. I want an Indian. I want a Japanese. I want a Switzerland. I want to be in UK. I want to be in Africa. I can't choose. You are born by force, not by choice. Whereas Lord says, Atma Mayaya. मैं डिसाइड करूंगा. ओ मैं दशरथ महाराज और कौशल्य का पुत्र बनूंगा. मैं यशोदा अपना देवकी और वासुदेव का पुत्र बनूंगा. मैं अदिति और इसका पुत्र बनूंगा, वामनदेव बनूंगा, इंद्र का बड़ा भाई बनूंगा. मतलब ही डिसाइड्स. अच्छा वो वैसा नहीं, वो सब नहीं करना. ब्रह्मा जी के नाक में से बाहर निकलूंगा. कौन से रूप में निकले? वराह रूप में वैसे निकले ना. ब्रह्मा जी सोच रहे क्या करें यार, धरती नीचे घुस गई है, क्या करूं. टक नाक में से बाहर आए. देखते देखते इतने बड़े हो गए. कहते हैं कि उनके एक दो बाल के बीच में, इन द फॉर्म ऑफ ए वराहदेव, बिटवीन टू हेयर एक पूरा मेरू पर्वत घुस जाए, इतना जगह था. एक मेरू पर्वत. यू कैन इमेजिन कितने विशाल. And he was just carrying this earth on his tusk like a small ball. And बेचारे अपने इंद्रद्युम्न महाराज पानी में सुबह नहाने गए, कमंडल उठाया, अंदर से टुक एक मछली, मत्स्य अवतार आ गया. और वो भी 10 सेकेंड्स के अंदर बड़ा होते 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 एक दिन के अंदर समुद्र के लेवल का बड़ा हो गया. एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड गॉड. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं अभी नोट्स बनाता हूँ, उतारता हूँ आपको. नहीं होने वाला. प्लीज फॉरगेट इट. यहाँ देवता सोच रहे हैं मेरू पर्वत को संभालें कैसे, मंथन करें कैसे, और वहाँ पे भगवान आ गए कछुआ बन के मेरू को पर्वत को उठाते हुए. एंड एंजॉइंग. इतना बड़ा मेरू पर्वत घस रहा है उनके पीठ के पीछे, खरखर खरखर. उनको ऐसा लग रहा है. देखा वहाँ देवता नहीं कर पा रहे हैं, असुर थक गए, दोनों हाथ एंड अपने हाथ में लिया और यशोदा मैया की तरह मंथन कर रहे हैं. और देवता असुर सोच रहे हैं हम लोग ने किया, हम लोग ने कुछ नहीं किया. पहाड़ उठाए, पहाड़ गिरने लगा. भगवान ने बोला तुम लोग का बस का बात नहीं. उठा के गरुड़ जी के कंधे पर रख दिया. गरुड़ जी उठा के लेके जाके क्षीर सागर में रख दिए. कहने का मतलब, लेट अस बी वेरी क्लियर. इवन वी आर नॉट फिट फॉर डूइंग एनीथिंग. We are also totally dependent on God on every step. And if something successful happens, don't try to give the credit to yourself. Thank God that He has been merciful on us in doing it. Always think like that. Okay, with this, I would like to close today's class. Anybody has got doubts, questions, can ask.